जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैं डीठ, तैसो ही मैं डीठ, तैसो ही मैं डीठ, तैसो ही मैं डीठ। जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, जैसा सतगुर सुनीदा, तैसो ही मैं डीठ, तैसो ही मैं डीठ, तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु, विछड़िया मेले प्रभु, विछड़िया मेले प्रभु, विछड़िया मेले प्रभु। हर दरगह का बासीठ, दरगह का बासीठ, हर दरगह का बासीठ, दरगह का बासीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाएंदा, हर नामो मंत्र दृढ़ाएंदा, कटे हो मैं रोग, कटे हो मैं रोग, कटे हो मैं रोग, कटे हो मैं रोग। नानक सतगुर तिना मिलाया, नानक सतगुर तिन्हा मिलाया, नानक सतगुर तिन्हा मिलाया, नानक सतगुर तिन्हा मिलाया। जिन तुरे पया संजोग, तुरे पया संजोग, जिन तुरे पया सतगुरां दी गोद दा आनंद माण रही गुरु प्यारी साध संगत जी। आओ गुरु कलगीधर दी असीस उन्हां दी मेहर नूं चित विच लैके आईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु की संगत वडभागी हो। सतगुरां दी गोद दा आनंद माणदे पए हो। परतख हर वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोई। ऐसी वड्डी वड्याई है मेरे साहिब दी। गुरु की संगत अज तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरता गद्दी ते विराजमान हैं। थोड़ा जा चित पिछे लै जाइए ना 1604 दे विच, उदों अजे गुरता गद्दी ते विराजमान नहीं सन। पहला प्रकाश जदों सचखंड श्री हरमंदर साहिब होया ना, तो पहले चौर बरदार पता कौन बने ने? आ पिछे आप जी तस्वीर तकदे हो, उधर भी तक रहे होगे। चौर साहब की तस्वीर है, उपर लिखिया होया हूँ पूत तेरा तू बाप मेरा। बाबा कबीर साहब जी की पंक्ति है।
ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ। ਇਹ ਮਤ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਜੋ 8 ਪਹਿਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਖਾਈ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਖੁਦ ਚੌਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲੇਹੋ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਛਤਰ ਵੀ ਸਜ ਗਿਆ, ਚੌਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਨਿੱਜ ਸਥਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਭੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਦੋਹਿਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਭੋਏ ਆਸਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹੋ 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 ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਤਿਸ ਜੇ ਵਡਿਆਵਰ ਨਾ ਕੋਇ, 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 ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ ਕਿ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਭੇ ਜੀ ਸਮਾਲ
अपनी मेहर कर सारे जीव जंतुओं का। सिर्फ ये नहीं कि जेडे गुरुद्वारे आउंदे ने उन्हां दा भला मनाउंदे ने, सिर्फ ये नहीं कि सिखां दा, सिर्फ ये नहीं कि पंजाबियां दा, हिंदुस्तानियां दा, दुनिया च वसदे मनुखां दा। ये तां सब्बे जी समाल जिन्ने जी तू पैदा कीते आ ना, मालका 84 लाख जून पाई मानस को प्रभ दी वड्याई। इन्हां सारियां दा भला मनाउंदे ने, इस तो वड्डा भला कौन मन सकदा। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अलाए, कोई पढ़े वेद, कोई कितेब। इत्थे है कोई भलेखा। कबीर जह दर आवत जाते हो हटके नाही कोई, सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। वो जिहड़ा ऐसा दर उहनूं किद्दां छड्ड सकदे आ संगत जी, जिथे कोई रोक टोक ही नहीं। किसी नूं ये नहीं पुछया जाता किहड़ी जात दा, की काम करदा, किहड़े मुल्क चों आया, कित्थे रहिना, की तेरी रंग आ, नस्ल है, धर्म की है तेरा, ये भी नहीं पुछया जाता। जह दर आवत जाते हो हटके नाही कोई, इत्थे तो कोई रोकदा ही नहीं। पर अजब अफसोस है कि इस गल का नजायज फायदा उठाया जा रहा है संगत जी। जिस भावना के नाल अज एकत्र होए ना, अठे पहर पहल सेवा लहर, 24 घंटे गुरु साहब जी की टहल सेवा च रहिए। सतगुरां दे इस विशाल हिरदे का एक नजायज फायदा उठाया जा रहा कि दोखी आके गुरु साहब जी की बेअदबी कर जाते हैं। बड़ा औखा होता है, बड़ा औखा होता है इदां दीयां गल्लां नूं बार बार रिपीट करना। 51वां समागम है संगत जी। ये 50वें दे विच आप दे विचों बहुत सारे गए सी, जो भाई गुरदास साल अमृतसर साहब विखे आपां कीता। पर फिर भी गल तुहाडे नाल सांझी करनी पैनी है, क्योंकि तुहाडे तक सुनेहा पहुंचेगा तां ही तुसीं अगे किसी नूं दस सकोगे कि मसला की है। अज मसला ये हो गया कि कुछ बद दिमाग लोग, जिन्होंने पता ही नहीं, जिन्होंने इन्ना भी नहीं पता कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ने, इन्हां दा फलसफा की है, इन्हां दा हिरदा की है। ये तो सारी दुनिया नूं सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। है कोई ऐसा? भाई लखविंदर सिंह जी, ऐसे मेरे सतगुरु ने, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। है तो सारी दुनिया नूं, सारी लोकाई नूं, सारे ब्रह्मांड खंड, 3 लोक भवन के नायका एक अखन दर्श दिखाए जी। ये तो कोई हद बन्ना छड्डदे ही नहीं। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे पुत्रों धीओ, आ जाओ। कोई गावै को सुने हर नामा चित लाए। बाउंड्रियां नहीं है संगत जी। कोई गावै को सुने हर नामा चित लाए, कहे कबीर शंका नहीं अंत परम गत पाए। कोई बाउंड्री नहीं रखी। इसलिए साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जगत गुरु के रूप में जिन्होंने सोझी आ जाती है ना। अज रूस के भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का तर्जमा हो रहा संगत जी, उत्थे बाणी पढ़ी जा रही है। एक एक पंक्ति का अर्थ करके ना, मेरा अज पता नहीं किसी होर पक्ष ते गल आ गई। गुरु ग्रंथ साहिब जी की शोभा की गल कर रहे हैं संगत जी। आपां तां इत्थे एक ऐसे दोखी जंपे, रूस जिहड़ा कि नास्तिकां दा मुल्क सी, उत्थे गुरु की बाणी रूसी दे पोचों की भाषा दे विच उहदा तर्जमा करके ते किवें पढ़दे ने, वो महसूस करते ने। एक पंक्ति पढ़ ली, चींटी होए क्या खाए, वो फिर महसूस करते ने कि रब जिहड़ा ना किदां दी चीज़ है कि हाथी दे वल्लों नहीं चुगी जा सकती, हंकारी बंदा नहीं इनू पा सकता। चींटी होए क्या खाए, वो एक एक पंक्ति का अर्थ पढ़ते ने, उहदा रस लेंदे ने, रस लेंदे ने संगत जी, जिन्होंने समझ आ गई है। अज वेने आ ना कई जिन्होंने आपां गोरे कह दिंदे है तो रब दे सारे मनुख की काले के गोरे, पर वो भी अज चिट्टियां दस्तारा बन्नी फिरदे ने। जिन्होंने सोझी आ गई, जिन्होंने पता लग गया कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ने,
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੇਗਾ ਹੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਜੇਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਟੰਗੋ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਟੰਗੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 302 ਲੱਗੇ ਜਾਂ 307 ਲੱਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ 28, ਫਿਰ 38 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 58 ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੈਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ, ਹਮ ਕਾਰਨ ਗੁਲ ਕੁਲੇ ਗਵਾਈ, ਹਮ ਕੋਲ ਰਾਕੇ ਕਮਨ ਵਡਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਠੇਸ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਤਾਂ ਠੇਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਚ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਮੀਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਬਰਬਰਤਾ ਸੇ, ਬੜੀ ਬਰਬਰਤਾ ਸੇ, ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇੱਕ, ਵੇਖੋ
जिन्हां दे अंदर अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम अपने, जिन्हां नूं प्यार। मैनूं परसों एक सिंह ने गल सुनाई, कहंदे कि जदों पहली वारी उत्थे घटनावां वापरियां ना 2015 दे विच, ते एक बच्ची सी, उन्हां दे घर गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश सी। संगत जी भावना समझो, बच्ची सी, घर गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश सी। जदों पता लगा कि महाराज दे अंग भंग कीते गए ने, आपां अंग कहने आ, महसूस करिओ। आ छोटी जी घटना एक बच्ची दी मैं तुहाडे नाल सांझी कर लगा। बच्ची ने दुध गर्म किया, विच हल्दी पाई, उन्होंने घोट के गर्म करके घ्यो पा के गुरु ग्रंथ साहब के सन्मुख जाके अरदास की। अरदास की पातशाह, मैं सुनिया कि किते सट लगी होए ना तो हल्दी वाला दुध पीना चाहिए। अज दुखिया ने तुहाडे अंगां ते वार कीता, भोग लाओ। अज मैं कहना चाहुंदा संगत जी, अज उन्होंने जिन्होंने सिर्फ अज वाली जिहड़ी चीज़ है वह बेरहमी नजर आउंदी है, पहलियां बेरहमियां तुहानूं नजर नहीं आईयां। 250 तो वध वार पंजाब दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो चुकी है। अज जे कोई घटना वापर गई, अज जे खालसे ने अपने कानून दे नाल दे दी सजा, तो अज वो क्रूरता हो गई, अज वो बेरहमी हो गई। वो बेरहमी नहीं सी जिहड़ी बुरज जवाहर सिंह वाले च हुई, कि वो बेरहमी नहीं सी। उन्नियां सारियां गल्लां तां असीं करनी नहीं चोगे। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च असीं पता नहीं किवें कलेजे ते पत्थर रख के बार बार ये गल्लां करदे हैं। संगत जी, एक गल जरूर साझी करनी चाहूँगा संगत जी, जो गल साढ़े समझ आ गई ना, तो फिर साडा मिशन है जड़ा ना अठे पहर टहल सेवा लहर, वो सफल हो जाएगा। जे तुहाडे चित्त च वो गल आ गई, असी कित्थे कमजोरी साडी रह गई। असी बहुत सेवा करते हैं, कार सेवा आनंदगढ़ साहब के गोलक पई, उन्होंने स्थान है। बाबा प्रेम सिंह जी इत्थे दे मुख सेवादार, बेअंत संगतां इत्थों लैके गए ने। श्री दरबार साहब भी गड्डियां भर के गई ने, पर बेअंत सेवावां इत्थों चलदियां ने, चलदियां रहनियां ने। पर असी साडे कोल गलती कित्थे हो गई, ये समझण दी गल है। तो समझावांगा भी अपनी गल तो नहीं, किसी होर दी गल तो। बुरज जवाहर सिंह वाला कोटकपुरे के लागे एक पिंड है, जिदा आम अपने पिंड ने, है ना, पिंडों के विच गुरु घर होंदे ने, संगतां सवेरे शाम दरबार च आउंदियां ने, सजदियां ने। दिन वेले असी आम ये नहीं कि असी जानबुझ के करते सी, पर आम साडा सुभाअ जिहा इदां दा बणिया सी। चलो हुण अरदास हो गई, प्रशाद लिया, तो चलो अपने कार विहार नूं चलदे हैं। ठीक है, जाना है, सानू सतगुरां ने किरत बख्शी है ना, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। असी वो सारे कारज करने ने, पर ये सारे कारज करद्या करद्या एक साडे कोल ना उकताई हो गई, अणभुणे दे विच गलती हो गई। गलती की हुई, उस घटना नूं सामने रख लाओगे तो सानू एहसास हो जाएगा, तो असीं भी गलती करते पे। हाँ, शायद कुछ गुरु घरां दे विच सेवा लागू हो गई है, वो सुचेत हो गए ने, जिन्हां नूं समझ आ गई। गुरु की संगत, ये सारियां घटनावां 2015 1 जून नूं सब तो पहली जिहड़ी मंदभागी घटना वापरी ना, जिद्दां अज भी वो जिहड़ी वीडियो आई, उहदे च गुरु ग्रंथ साहब जी दा स्वरूप चुक के ले जा रहा सी वो दुखी। अजे पूरी गल तो एक दे दिन सामने आएगी, पर वो जिहड़ी सामने वीडियो आई है गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप चुक के लैके जा रहा सी। बुरज जवाहर सिंह वाला जिहड़ी घटना वापरी, ग्रंथी सिंह कोटकपुरे के लागे पिंड है, तो मोगे नूं चला गया। सामने एक गुरु दोखी की दुकान सी, उन्हें अपने साथियों को सुनेहा ला दिता। वो सुनेहा की लगा, वो साडे समझण वाली गल जे। वो कहंदा अज कोई वाली वारस नहीं जे हैगा। गुरु की संगत, उन्हें अपने साथी नूं पता की कहा, कहंदा अज कोई वाली वारस नहीं जे हैगा, पा दिओ कार्रवाई। वेखो हुण अपनी शक्ल अपने शीशे च वेखीए, इहदा मतलब असीं है नहीं।
पूजा काल की परचा शब्द का दीदार खालसे का मतलब खालसा कमजोरी च है। अज कोई वाली वारस नहीं जो हैगा वो मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दे कहण वाले सतगुरु उत्थे भी सिंह पहुँच गए सन। थोड़ा जिहा समा जरूर सी जदों गुरु कलगीधर पातशाह वो टिंड दा इट दा सराणा ला के सुते सी ना माछीवाड़े दे जंगलों दे विच। पर अज तां इन पुत्रन के शीस पे वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हज़ार। अज हज़ारां जेड़े वारिस है ने ये उन्होंने ही जगाउण आए संगत जी, काम कोई होर नहीं है साडा। तुहानूं पता है, तुसीं जाणदे हो गुरु नूं प्यार करना, तुसीं जाणदे हो तुहाडे रोम रोम विच गुरु दा प्यार वसिया होया है। उन्होंने सिर्फ एक सुरजीत करना है कि आ भी नुकता देख लो, आपां होर भी 50 ढंगां नाल अपना प्यार इजहारे मुहब्बत करते हैं। साची प्रीत 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 हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोहरी। जदों सच्ची लग जाती है ना फिर वो लग जाती है। हब्बे साख कुड़ावे दिखे तो पल्ले तंडे लागी। सो गुरु की संगत अज सानू ये गल समझण दी लोड़ है। जदों दुश्मन कहिंदे ना अज कोई वाली वारस नहीं जे हैगा ते फिर सानू सिद्ध करना पैना ना। आपां इन्हां गल्लां तो मुनकर नहीं हो सकते, ना नहीं कर सकते। गुरु की संगत पिछे जिहड़ी मैनूं लगदा 2 महीने पहला मीटिंग हुई सी श्री अकाल तख्त साहब ते उत्थे खुद जथेदार यानी हरप्रीत सिंह होरां ने स्टेज तो एक गल कही सी कि मई 2019 तक 250 तो वध वार साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हो चुकी है। आपां मुनकर नहीं हो सकते ये तो। असीं जदों 1 सितंबर नूं चले सी ना 12 सितंबर की रात तक संगत जी जिथे समागम करते से ज़्यादा असीं कारज इसे बैल्ट च कीता। 2-3 समागम ही माझे च कीते ने, ज़्यादा इस एरिए च कीते। संगत कहिंदी सी साडा इलाका बड़ा शांत है, बड़े प्यार वाले लोग ने इत्थे। तो हर धर्म का जदों भी कोई गुजरदा ना गुरुद्वारा साहब के लागों दी ते नमस्कार करके लंघदा है। ते लंघना भी चाहिए, लंघना भी चाहिए। ये तो सतगुरु है ही ऐसे दयाल ने, ऐसे दयाल सतगुरु ने, तो सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार करनी बनती है। पर जे कोई हुण बद दिमाग हो जाए, देखो 2 तरह के कुत्ते होंदे ने अपने पिंडां च है ना। एक तो वफादार होंदे ने है ना। वफादार नूं महाराज की कहिंदे ने, स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक कह बिद हर भजो एक मन होए एक चित। जिद्दां एक वफादार कुत्ता अपने मालिक का दर नहीं ना छड्डदा, इदां तू पक्का हो जा। ते एक कुत्ता हो जांदा जिहड़ा हलकाया हो जाए, जिहड़ा सच्ची मुच्ची पागल हो जाता है। फिर उन्होंने आपां पता ही आपां की करते हैं पिंडां च, जदों पता लग जाता है हलकाया इत्थे वड्डू उत्थे वड्डू उत्थे वड्डू, फिर उहदा इलाज हो जाता है। सो अज 2 चीज़ां हो गईयां ने। इनू चाहे तुसी हलकाए कुत्ते दे नाल देख लीए, तो एक इस तो भी बरीक पिछे एक महाराज ने फुरना दिता। सारा जदों संसार च आउंदा गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार, तो फिर ये लोग कौन ने? ये लोग कौन ने जिहड़े बेअदबियां करते हैं? जे सारा संसार, सारे धर्मां दे मुखी, सारे फिरकियां दे मुखी, सारियां जातां दे मुखी जदों ये चाहुंदे ने, अज उत्थे दिल्ली जाके किसान मोर्चे च असीं उत्थे साल सवा साल उत्थे सेवा करते रहे हैं। ये तो महाराज ने कन्नों फड़ के इत्थे लिआंदा। असीं भी अपने कारजां च लगे हुए सी दूजियां च, पर महाराज ने आख्या भी आह काम भी पुत्रो बड़ा जरूरी है। सो इस काम दे विच आ गए। सारा संसार गुरु ग्रंथ साहब जी का अदब सत्कार चाहुंदा है, करदा है। तो जिद्दां भैणों कई बारी जदों दाल आउंदी है ना घरां 'च, तुसीं चुगड़दे हो ना,
वो विच कोई रोड आ जाते हैं, वो वेखण नूं दाल ही लगती है, पर तुसीं की करदे हो, उन्होंने चुक चुक बाहर सुट्टदे हो, क्योंकि हुंदी ही नहीं। इदां ही वो जिहड़े ने ना, वो इंसान नहीं, वो किसी धर्म दे भी नहीं आ, उन्होंने वखरा करना पैना। चाहुंदा है संसार गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार, इस चीज़ नूं आपां नूं दुनिया के सामने लैके आउणा पैना, उन्हां लोकां नूं वखरे करना पैना। ये साडे समाज का हिस्सा नहीं है। ये भावना लैके आपां उन्हां नूं वखरे करिए, तत्पर होइए। तत्पर होने के तरीके जिहड़े ने, आ सारे जिहड़े वीर बैठे ने ना, संगत जी वेखो, वो एक कवि का एक दे बोल ने कहंदा सी, अकेले ही चले थे मंजिल की ओर, साथी मिलते गए कारवां बनता गया। जदों आए सी ना इत्थे 27 तरीक नूं, मैं तो मेरे कुछ साथी जिहड़े साडे मीडिया वाले ने, कैमरे वाले दूजे, तो बाकी सारा कारवां इत्थे आके बनिया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का दर हर हिरदे दे विच है। मैनूं पता कि अज दी इस समागम तो बाद 2-4 सिंह तुहाडे चों भी साडे नाल तुर पैणे ने, क्योंकि काम बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा कारज है। 35,000 तो वध गुरु घर ने संगत जी पंजाब की धरती ते, कल्ले पंजाब की गल कर रहे हैं, अजे बाहर की नहीं गल कर रहा। उन्हां तक एक सुनेहा लाउणा है कि वारस जींदे ने, हाँ पुत तेरा तू बाप मेरा, हाँ पुत हाँ पुत तेरा तू बाप मेरा, पुत तेरा तू बाप मेरा। हुण पुत जींदे ने। अगे वधन तो पहला ना बाबा सुच्चा सिंह जी की एक गल मैनूं याद आ गई। बाबा सुच्चा सिंह जी मुख प्रबंधक कार सेवा कला आनंदगढ़ साहिब, जदों असीं 27 तरीक नूं आए ना, तो सारी चर्चा चली, तो 1 तरीक का प्रोग्राम सीगा अपना, तो मैनेजर साहब भी लागे बैठे सन, बाबा बलदेव सिंह भी बैठे, होर भी भाई जरमनजीत सिंह, सारे सिंह बैठे, तो इदा फोन ला रहे सी भी संगत नूं दस रहे सी। तो सिंह ने अगों फोन पर पूछा कि बाबा जी मसला की है। देखो कई बार सादी भाषा च ना गल वधिया समझ आ जाती, मैं कई जगह पर यह गल शेयर जरूर करदा, साझी करदा। बाबा जी कहंदे, बाबा सुच्चा सिंह जी कहंदे कि पिंड दे विच जे किसी दे प्यो नूं कोई कुट जे, पिंड दे विच जे किसी दे प्यो नूं कोई कुट जे, ते धी पुत कर कुछ ना सके। कहंदे फिर लोकी पता की कहंदे आ, कहंदे लोकी कहंदे हराम दा होना है, जे सका होंदा ना इन्हूं दर्द होना सी, इन्हें चैन नाल नहीं सी बहना। संगत जी अज साडे ते भी यही वार हो रहा है, इस गल नूं समझण दी लोड़ है। अज वो चाहुंदे ने कि काम वर्तारा हो जाए, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हो जाए, तो सिख चूं ना करन, पर यह नहीं होण देना। जे आपां कहने आ ना, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई तापो कहा काड़ा जियो, ते अपनी ड्यूटी सानू भी सामनी पैनी है। संगत जी साडी ड्यूटी की है? सेवा करनी, टहल करनी, जेडे साडे वड्डे वडेरे करदे रहे। जदों गुरु कलगीधर पातशाह इत्थों दी किते लंघदे होणगे, संगत जी उस चित्त दे विच लैके आओ गुरु कलगीधर पातशाह जी दा नज़ारा। जदों सजदे मिला दी बेनती दे उत्ते गुरु कलगीधर पातशाह ऐसे रस्ते किते लंघे होणगे, संगत जी की जलाओ होएगा। ते अज सानू ये सुनने नूं मिल लिया कि वाली वारस कोई नहीं हैगा, ये सानू समझना पैना। जवाब किदां देना? संगत जी आ सारे वीर बैठे ने, जवाब दे रहे ने अपने अपने ढंग दे नाल। पहला जवाब अज तो 5 साल पहला नगर हीरा, वेखो असी पहले नहीं है, ये तो सतगुरां ने साडी झोड़ी ये सेवा पाई है। ये गल 2016 दे विच हीरा नगर की संगत नूं समझ आ गई। उन्होंने उदों तो गुरुद्वारा थड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर उस महान योधे दा उस थड़े दे गुरुद्वारा साहब के उत्ते उदों तो सेवा ला लई कि आपां रल मिल के सेवा करनी।
31 परिवारां ने सेवा लै ली गुरु की संगत। महीने के वध तो वध 31 दिन होंदे आ, 28 हो गए, 30 हो गए, 31 हो गए, है ना, किसी बारी 29 भी आ जाते हैं, पर 31 तो वध नहीं है। सब तो पहला नगर के सरपंच साहब सी, उन्होंने सेवा लई, फिर प्रधान साहब ने लई, जनरल सकत्तर साहब ने, इदा करते करते सारे ने सेवा लै ली। 31 आ जिहड़ा पहला चार्ट तुसीं देखते पे हो, इहदे च भी 31 की लिस्ट असीं बनाई है। उन्हों का नाम, पिता का नाम तो मोबाइल नंबर लिख के तुसीं अपने प्रबंध च ही रख सकते हो। असीं तां तुहानूं हल्लाशेरी देण तुहानूं याद कराउणी आए हैं संगत जी। उस पिंड दे विच 200 तो वध घर ने संगत जी। उत्थे 100 घर जिहड़ा पूर्ण रूप च गुरु ग्रंथ साहब जी नूं समर्पित है, पर 31 ने सेवा लै लई है, करदा सारा पिंड पिया। इस गल नूं समझिओ, 31 ने जिम्मेवारी लै ली है। जिदन किसी 35वें का जी करता, 40वें का जी करता, वो आके बेनती करता भी कल मेरे बच्चे का जन्मदिन, असीं चाहुंदे हां कि असीं सारा दिन गुरु ग्रंथ साहब जी नाल बिताईए। अज असीं खुशियां लैणियां ने संग जी। खुशियां लैण दा यही तरीका जिहड़ा सानूं आपां रोज़ रहरास साहब दे अखीर दे विच पढ़दे आ ना, अंतर गुर आराधना, अंतर गुर आराधना, जेहवा जप गुर नाम, जेहवा जप गुर नाम, नितरी सतगुर पेखना, नितरी सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाम, सरवणी सुनना गुर नाम, सतगुर सेती रतिया, सतगुर सेती रतिया, दरगह पाइए ठाओ, दरगह पाइए ठाओ, संगत जी किते कल्लियां गल्लां करन जी करे ना, रब नाल कल्लियां गल्लां करनियां। कई बार जी करदा है ना कि अज रब दे नाल कल्लां जाके गल्लां करिए, तो फिर सेवा लै लिओ। एक दिन दी 2-2 घंटे दी भी लै सकते हैं संगत जी, 2-2 घंटे। आम तौर पर नगरां दे विच की है, सवेरे 6 बजे सवेर के दीवानां दे भोग पै जाते हैं, शामी 6 बजे रहरास साहब दे पाठ आरंभ हो जाते। समा थोड़ा बदलता रहिंदा, हुण अगां सर्दियां आ रहीआं, पर मूल रूप में असीं अंदाज़ा लगाया सी कि 12 घंटे दिन के बनते हैं संगत जी। उन्होंने 2-2 घंटिया की रौल दे विच वंड लईए, 6 सेवादार एक दिन दे विच आराम नाल सेवा कर लेंदे ने, भावें इक्को परिवार दे होण, भावें 2-4 परिवारां दे रल के कर लैण। सेवा गुरु की करनी है, किद्दां करनी है? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। आ चौर साहब हो रहा ना संगत जी, आज सिंह साहब जी बैठे चौर साहब करते पे ने, नाल सिमरन जोड़ लेना, सुरती जोड़ लो, वाहे गुरु 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 वाहे वाहे। संगत जी लागू हो गया ना सारे का सारा शब्द ही। अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाम, नेतरी सतगुर पेखना। दर्शन करने ने अखां दे नाल,
ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਨਾਮ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਤ ਦੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਕੱਢੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ? ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸੱਦ ਬਹਾਲੇ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ। ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਗ ਰੋਕਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਗ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੇਗ ਐਸਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਦਲੈੜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਤੇਗੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇਗਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉੱਥੇ NFL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਾਰਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਉ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਪਰਾਇਆ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੌਂਕਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ।